Okay. So what we have done, we have taken a glass top, glass tube, applied electrode, zinc sulfide screen, and inside that, no, there was large amount of pressure. तो जब भी प्रेशर बहुत ज्यादा था ना, तो ग्लो मिला नहीं. अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर का मतलब क्या है? Yeah, you have to draw this, or if you are getting a video, is fine with you. But just tell me, what do you mean by pressure? Pressure क्या होता है? Force per unit area. अरे वो ठीक है. What's your name? G016. नाम क्या? नाम Mayank. Okay. Mayank. The thing is, I know exerted force. अच्छा, एक काम करो, जब तुम आंसर लिख रहे हो ना, तो आंसर से पहले ना अपना नाम लिखो. जब आईडी से आंसर आता है ना, तो कुछ समझ में आता नहीं है. मयंक ने बोला फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर. ठीक है. there molecule present in that area 001. Those movement Aditi. अच्छा. Those movement exert pressure. Okay. Listen. हम ना बचपन से एटमॉस्फेरिक फिजिकल फोर्स बाय मॉलिक्यूल. सतीश, अदिति, मायांक. Okay, listen. Most of you are very close to it, right? यार चक्कर क्या है? अगर तुमसे मैं पूछा जाऊँ ना, पूछूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो तुम बोलोगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एग्रीड? ये बोलोगे ना कि एटमॉस्फेयर जो मेरे ऊपर प्रेशर लगाता है, वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. कह देंगे वो कितना होता है? 180. राइट. तो वी ऑलवेज नो दैट जो प्रेशर है दैट इज 180. 180 किसके इक्वल होता है? 101,325 पास्कल. सर 8 ATM ना 101,325 पास्कल्स के इक्वल होता है. व्हाट इज द पास्कल? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर. कैन यू सी दैट पास्कल थिंग प्रॉपर्ली? नहीं, बट हाँ. That's good. I'll just check that. Now is it visible to you? Yeah. Yeah. I got it. ठीक है. तो 1 ATM क्या होता है? 101,325 पास्कल. तो बोलते हैं कि यार एक ATM क्या होता है? 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एक ATM को ना 760 टॉर भी बोलते हैं, और एक टॉर को ना मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी बोला जाता है, और एक ATM को ना 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी बोला जाता है. ये सारा एक ATM के लिए है. हाँ, ATM means 1 atmospheric pressure. 1 ATM means 1 atmospheric pressure, right? Okay. So 1 ATM means 1 atmospheric pressure. Sure. Now I guess you understood this point. Okay. Yeah, you have to draw cathode ray diagram. You have to draw everything. You have to ask all the doubts which you are having in your mind. You have to do everything, right? Just see, I'll tell you my experience. I was in the class of first class of mine, right, in atomic structure. So the faculty, like who was teaching me,
he asked me, A.K. Gupta sir, right? He asked me like, what is atmospheric pressure? So I told him the pressure exerted by the atmosphere. I'll explain you everything. Just give me a minute. Right? So I told the pressure exerted by atmosphere on me, it is atmospheric pressure. You understood? Now, he said, fine, the pressure exerted by atmosphere on you is atmospheric pressure, but now, as we pursue science, right? So every time when you answer me anything, right? So think from brain, do logical analysis, and tell me the reason, not the definition alone. Are you getting a point? उन्होंने कहा कि अब तुम साइंस पढ़ रहे हो तो मुझे ना रटी रटाई चीजें ना बोलो, अपना दिमाग लगाओ और सोच के बोलो कि ये चीज क्यों हो रही है. गेटिंग इट? तो अब ना मैं तुमसे सेम चीज पूछ रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर मेरे ऊपर लगा रहा है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया कैसे आया? Okay, name 006, name. Okay, Shivin. Okay, 1 second. So I got various answers here. I'm keeps on getting. Gravitation force of attraction on gas due to mass of air particle. Gravitation pull on atmosphere. It is due to the movement. Okay, fine. Was exerted by, very good. Okay. Concentration of force in a specific area. That is the different definition of pressure itself. सुनो, चलो सुनो. मैं यहाँ खड़ा हूँ इधर इस रूम में. Okay, was exerted by mass of atmosphere on an area. मतलब okay. सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर गैस का मास है, ठीक है, तो वो गैस का मास मेरे ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहा है, उसको प्रेशर बोलूंगा. ऐसा नहीं, सुनना ध्यान से. होता क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है क्या और कैसे आता है, और ये इतना अच्छी चीज है ना. हाँ, करेक्ट. इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेम. सुनो ना, इस हाथ में जितना प्रेशर लग रहा है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इधर कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एवरीवेयर in my body per unit area the kind of pressure which I'm experiencing is same. अगर प्रेशर अलग अलग होता तो मैंने दोनों हाथ ऐसे रखे हुए, ठीक है, तो अगर यहाँ प्रेशर अलग होता तो ये हाथ फूल जाता और यहाँ सिकुड़ जाता, है ना. ऐसा तो नहीं हो रहा है ना. ऑब्वियसली प्रेशर हर जगह सेम है. इवन तो जहाँ तुम बैठे हुए हो ना, वहां पे जितनी भी दीवार है आसपास, हर एक दीवार पे सेम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. एवरीवेयर. गेटिंग इट? एक एटीएम प्रेशर ही लग रहा है. गेटिंग इट? नाउ वो प्रेशर आ कैसे रहा है और क्या क्या रीजन है, मेरे को अभी अदिति ने जो आंसर दिया दैट वाज करेक्ट, बट लेट अस एनालाइज इट प्रॉपर्ली. राइट? पहली चीज, कोई भी पार्टिकल्स अगर कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे सेम रहता है. ये बात मानोगे कि नहीं कि अगर कोई भी पार्टिकल रैंडम मोशन में रहते हैं और इधर उधर मूव करते रहते हैं, इधर ऐसे, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पे सेम रहता है, या हाँ या ना? Okay, one is saying yes. No, how come? सुनो, एक बात सुनो.
तुमने क्या किया, यू हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास लिया, ठीक है। बहुत टाइम पहले ना लोग रूह अफ़ज़ा पीते थे, ठीक है। आजकल का ट्रेंड पता नहीं, आजकल बहुत सारे स्लश आ गए हैं ये, ठीक है। आई डू वन थिंग, आई टेक अ टेबल स्पून ऑफ एनी शुगर सिरप, ठीक है। तो शुगर पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने ना वो टेबल स्पून ऑफ शुगर सिरप उस पानी को उस ग्लास के अंदर डाल दिया। तो आई हैव जस्ट एडेड, getting it, when I added it and I just mixed it, getting it, see, I'm mixing it. Now the sugar particles in this water is got dissolved. So shall I say that if they dissolve, the sugar particles are moving randomly in all the directions. The sugar particles are moving randomly in all the directions because they got dissolved. In water, there is a lot of space. So I have this glass of water. In this glass of water, the sugar particles are moving randomly. Yeah, Brownian motion. You can say it Brownian motion. But the thing is, they are moving randomly everywhere. If they're moving randomly, the distribution of sugar particle is so even that the sweetness of one drop of solution and the sweetness of entire solution is same or is different? I'm just asking this question. हाँ, it is same. That means अगर कोई भी चीज randomly move कर रही है, अगर कोई भी चीज randomly move कर रही है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पे इक्वल होगा। Getting it? अब इस रूम में ना गैस पार्टिकल्स है, बहुत सारे गैस पार्टिकल्स है, राइट। जब बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं इस रूम के अंदर, ये भी रैंडमली मूव कर रहे हैं। हाँ, सैंड रैंडमली मूव करती है, मतलब कहाँ पे मूव करेगी सैंड, ये कहाँ पे आ गया। अच्छा वन सेकेंड, पहले ना एयर पे आते हैं। जो हवा है अपने आसपास, उसके पास जो मॉलिक्यूल्स है, मेजरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो भी रैंडमली मूव करें बिकॉज गैस है। गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, रैंडम मूवमेंट होगा ना गैस के अंदर भी। तो अगर गैस का रैंडम मूवमेंट है तो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पे सेम रहेगा। नाउ अंडरस्टैंड दैट गैस पार्टिकल्स क्या करते हैं, तो उनकी टेंडेंसी होती है कोलाइड करने की, ठीक है। तो जब वो रैंडमली मूव करते हैं ना ऐसे, तो वो क्या करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं ऐसे, they will collide with each other as well as they will collide with the walls of the container like this. Now understand that इस पूरी वॉल में ना बहुत सारे गैस पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग लाइक दिस। उस कोलिजन की वजह से, अब सुना, क्योंकि मोशन रैंडम है, हर पर यूनिट एरिया में, हर पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी वो इक्वल होंगी। मोशन रैंडम है ना। हाँ, तो अगर पर यूनिट एरिया की बात करो ना, तो उस पर यूनिट एरिया के अंदर जो गैस पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं ऐसे है ना, उस कोलिजन से थोड़ा बहुत फोर्स लग रहा है ना, थोड़ा बहुत फोर्स लग रहा है। उस फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस जब हर जगह कोलाइड करती हैं, उस कोलिजन की वजह से पर यूनिट एरिया में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स पर यूनिट एरिया को ना प्रेशर कहा जाता है। तो इस जगह, इस रूम में मेरी बॉडी के साथ इस दीवार पे, इस ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी इस व्हाइट बोर्ड पे, इधर everywhere, right? The gas particles are colliding and that collision per unit area, this force per unit area is pressure. It is so homogeneous that everywhere that pressure is same and that pressure is known as atmospheric pressure, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर मेरे ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और वो कितना होता है, वो इतना प्रेशर होता है जो मैंने लिखा। सेम चीज, थ्रस्ट इज द सेम थिंग।
Yeah, one second. Sir, can you please explain again? No, in higher altitude pressure is low. In colder, हाँ. See, अब जिसने बोला एक्सप्लेन करो अगेन, ठीक है. मैंने बोला गैस पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स दे कोलाइड हियर एंड देयर. तो वो हर जगह कोलाइड कर रही है और कोलिजन्स के वक्त जो फोर्स लगता है ना, तो उस फोर्स पॉइंटेड एरिया को प्रेशर कहा जाता है. मैं ये कह रहा हूँ. गेटिंग इट? सो दैट फोर्स पॉइंटेड एरिया इज नोन एज प्रेशर. ठीक है. अब सीन क्या है, हर एक जगह फोर्स इक्वल लग रहा है पॉइंटेड एरिया बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है. अब कोई पूछ रहा है कि सर ऑल्टीट्यूड में जाने के बाद प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है? ऑब्वियसली जब तुम पहाड़ चढ़ोगे तो ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो गैस पार्टिकल्स है वो अर्थ सरफेस पे थोड़े से ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू ऑल्टीट्यूड. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस पार्टिकल ज्यादा कहाँ रहेगा, अर्थ सरफेस पे या पहाड़ों पे? अरे गैस पार्टिकल ज्यादा कहाँ रहेंगे, अर्थ सरफेस पे या पहाड़ों पे? हाँ, सरफेस पे. सबने कहा सरफेस पे. तो प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? प्रेशर ज्यादा होगा सरफेस पे. एग्री? एग्री? तो प्रोडक्ट डन. तो प्रेशर ज्यादा होगा सरफेस पे. एग्री टू इट. डन. अब सुन लो. कोई बोल रहा है कोल्डर रीजन में जहाँ पे ठंड होती है वहां पे प्रेशर कम होता है. यार एक बात बताओ, गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. सपोज ये गैस पार्टिकल है, ये मूव कर रहे हैं. टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. मोशन ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो कोलिजन ज्यादा होगा. अगर कोल्डर कंडीशन है, टेम्परेचर कम है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी. अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उसका जो कोलिजन रहेगा वो गैस पार्टिकल का सरफेस के साथ जो कोलिजन रहेगा वो कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? वो कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? It'll become less. अगर वो कम रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा. अगर वो कम रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा. Yeah, great. So proud of you. Now listen. सुन लो. जब प्रेशर 1 atm था ना, या प्रेशर ज्यादा था, उसको कोई ग्लो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उसको. वो बस देखते रह गए. ठीक है. तो एक मोमेंट में क्या किया उन्होंने, सोचा कि चलो एक काम करते हैं, वी विल ट्राई टू डिक्रीज द प्रेशर. तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, हम ना प्रेशर को कम करते हैं. तो प्रेशर कम करने का मतलब है कि गैस पार्टिकल्स को कम करना, क्योंकि ज्यादा गैस पार्टिकल्स होंगे. एग्जैक्टली. सो ही क्रिएटेड वैक्यूम लाइक कंडीशन. उसने क्या किया, यहाँ पे ना एक वैक्यूम लाइनिंग लगा दी. वैक्यूम लाइनिंग का मतलब है एक ऐसा मशीन जो गैस पार्टिकल को सक कर रहा है. अगर वो गैस पार्टिकल को सक करेगा तो यहाँ पे ना अमाउंट ऑफ गैस which remains over here will become less. अगर यहाँ पे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल कम होंगे ना तो प्रेशर कम होगा. जब उसने प्रेशर इस रीजन के अंदर 10⁻⁻² से 10⁻⁻4 mm ऑफ Hg कर दिया, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कर दिया ना, तब उसको ना एक ग्लो मिला अंदर. उसने बोला अरे बॉस कुछ तो निकला अंदर. गेटिंग इट? एंड ही स्टडीज दोस रेडिएशन, और उन रेडिएशन को उसने कैथोड रेज बोला. गेटिंग अ पॉइंट? अब वो कैथोड रेज कैसे आई, क्या हुआ, अभी बताता हूँ. इतना समझ में आया कि प्रोसीजर क्या था, इतना समझ में आया कि प्रेशर का मतलब क्या होता है, इतना समझ में आया कि अगर गैस पार्टिकल्स को निकालूंगा, वैक्यूम करूंगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि प्रेशर हो किसकी वजह से रहा है, गैस पार्टिकल्स की वजह से. बात समझ में? सर आज के बाद ना हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे ना, उसको रटना नहीं है, समझ के आगे चलना है. और अगर नहीं समझे ना तो क्लास के बाद मेरे को कॉल करना, या फिर क्लास के वक्त ही डाउट पूछना.
गेटिंग अ पॉइंट? कहो हाँ। चलो ठीक है। अच्छा लिसन 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 लिसन। सर प्रेशर कितना था? बेटा देख, 180 इससे ज्यादा प्रेशर था। मैंने प्रेशर कितना किया, 10⁻², से लेके 10⁻4 एटीएम तक किया, 10⁻4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक किया। अब बता दो करना कैसे। इससे हटाऊं क्या? इसको हटाऊं? मुझे ना बताना है कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। और एक काम करते हैं, प्रेशर के साथ डील करते हैं एक बार, है ना, ताकि तुमको भी पता लगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। हाँ। ओके, सुन लो। ये ना, ये एक मर्क्यूरी लिक्विड लिक्विड मर्क्यूरी लिया मैंने। दिस मर्क्यूरी, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको बाहर ओपन एयर में रख दिया। तो मुझे पता है ना, जो एयर है और जो एनवायरमेंट है वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। कितना डालेगा? P80। हाँ वही बता रहा हूँ बेटा। Student is asking that what do you mean by millimeter of mercury? I'll tell you right now everything. Just give me a minute. हाँ सुन तो लो कि अभी क्या हुआ। मैंने ना यहाँ पे एक क्लोज ट्यूब रख दिया, ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस लिक्विड में फोर्स लगाएगा। एग्री? हाँ मर्क्यूरी बैरोमीटर। देखो मेरे को ना, आ, मेरे को ना इतनी भारी भारी लैंग्वेज बोलने की आदत नहीं है। बैरोमीटर बैरोमीटर मेरे को समझ में नहीं आता है। बाद में समझ में आएगा जब आगे बढ़ेगा। मैं सिर्फ नॉर्मल चीज बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे लिक्विड है और एटमॉस्फेयर इस लिक्विड पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, तो ये लिक्विड यहाँ पे क्या करेगा? Okay, fine. I don't care when it is made or when it is not made. People are very curious, like very curious. Listen, हाँ हाँ, तो अगर लिक्विड मर्क्यूरी पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली मर्क्यूरी अंदर की तरफ जाएगा। समझना समझना इस चीज, ठीक है। अब चक्कर क्या है, यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया P80, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P80। सो ऑब्वियसली, नहीं मैंने इन्वर्टेड ट्यूब लिया है और मैंने मेक श्योर किया है कि वहां पे कोई भी प्रेशर ना हो। मैंने ट्यूब इस तरीके से लिया है कि मैंने उसमें ये श्योर किया है कि वहां पे इनिशियल प्रेशर ना हो, तो काम होगा। या तो सुनो, they have used it, I can use water also। नहीं मर्क्यूरी की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी लिक्विड यूज कर सकता हूँ। बट तुमने पूछा 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी का मतलब क्या है, रुको ना बताता हूँ। सुनो, तो अगर प्रेशर लगा यहाँ पे 1 atm तो मर्क्यूरी राइज करेगा।
ऑब्वियसली मर्क्यूरी राइज करेगा, नीचे प्रेशर कितना लग रहा है, P18, दैट इज 180, तो ऊपर मर्क्यूरी राइज कर रहा है, कोई एक पॉइंट तक राइज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मर्क्यूरी कॉलम है, ये जो मर्क्यूरी यहाँ पे आया, ये वाला मर्क्यूरी, राइट, इसका जो हाइट आया ना, दैट इज 76 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, पता है ना, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर। तो जब ये 76 सेंटीमीटर पहुंचा, तब ये रुक गया, गिरेंगे, और मुझे पता था नीचे लग रहा है प्रेशर P18, गिरेंगे। तो इस पॉइंट पे ना जब ये रुक गया, तो मैं कह सकता हूँ ना, जो फोर्स मर्क्यूरी कॉलम, ये जो एक्स्ट्रा मास इधर लगाएगा नीचे की तरफ, और जो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर दोनों बैलेंस हो गए तभी ये रुकेगा, अदरवाइज रुकने की जरूरत नहीं थी। जब तक इसका जो फोर्स है इस मर्क्यूरी की वजह से, इस मर्क्यूरी का जो मास है, भारीपन है, उसकी वजह से जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, अगर ये फोर्स इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फोर्स को बैलेंस कर जाए, तो उसके बाद मर्क्यूरी और ऊपर नहीं उठेगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और रुक जाएगा। एग्रीड? या तो एक बात सुनो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो फोर्स कितना लगाया एटमॉस्फेयर ने, दैट इज P18 into area. So I will be getting force applied by atmosphere is equal to pressure ATM, atmospheric pressure, into area of this cross section. ये किसको बैलेंस कर रहा है, फोर्स बिकॉज ऑफ दिस वेट, और वेट की वजह से जो फोर्स होता है ना, हम बचपन से करके आए हैं, उसे mg कहते हैं। ये m इज मास ऑफ मर्क्यूरी। हाँ, sir, can we create absolute vacuum if absolute vacuum is not the gas in the tube? Yeah, it will apply some pressure, but that will be negligible and you can manage it later on. Whatever calculation error you will be getting, you can manage it later on. But as a juvenile state of mind, where we are like initial beginners, we will not consider that much thing. होनी चाहिए, obviously होनी चाहिए, air होनी चाहिए. I'll do one thing, I'll apply a vacuum lining over there so that I'll just finish all the air above it. Done. अगर मैंने वैक्यूम लाइन लगा के पूरा प्रेशर हटा दिया ऊपर से, तो जो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे वो तो सही रहेंगे ना उसके बाद, है कि नहीं? है ना? तो एक काम करता है, यहाँ पे मैंने वैक्यूम ही लगाया, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मर्जी उनकी मर्क्यूरी लेने का, उसके बाद कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट एनीवेज पहले मर्क्यूरी का मतलब समझ लो कि क्यों आया ऐसा, ठीक है। सो द आंसर mg क्या होता है, मास इनटू g is your acceleration due to gravity. Getting it? Now understand one thing, P18 is equal to, mass can be written as volume into density into g. Volume of mercury will be written as length into area is volume. So P18 into area, I'll write it here, getting chaos here, so I'll write it here. P18 into area is P into area is equal to m is mass is volume into density of mercury into g. Getting it? Now understand that P into area is equal to, what is the volume of mercury? That is area into length. Area into length
into rho of mercury into G, where length is nothing but height of mercury column. Then after that, A and A got cancelled. So PATM is defined as H rho G, where H is height of mercury column, rho is density of mercury, and G is acceleration due to gravity. Listen, this height is defined in terms of pressure, and that height was 76 centimeter. Okay. सुनो, हाँ बेटा, हाँ रुक जा। मैंने कहा तुमको 001 P001 V011 हाँ, अरे नाम बताओ, नाम नाम नाम। वंश, okay, and other Saloni. Okay, now listen. Once दोबारा बता दो, है ना? We'll make it fast. पहले सुन लो, फिर डाउट है दोबारा, ठीक है? होता क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब में ना मरकरी की जो हाइट आई वो 76 सेंटीमीटर थी, या फिर 760 मिलीमीटर। तब ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस मरकरी की हाइट को बैलेंस कर रहा था। तो हमने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी को 760 टॉर भी बोला जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मरकरी। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे हुई? हाँ, नहीं, हाइट ऑफ मरकरी रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, बताता हूँ क्यों, ध्यान से सुनना। अब मुझे एक चीज पता लग गई कि अगर ये बैलेंस हो रहा है तो 76 सेंटीमीटर, सपोज ये 76 सेंटीमीटर का हाइट है, इसका ये मरकरी कॉलम, ये एरिया है और ये लेंथ है इस मरकरी कॉलम का। लेंथ कितना है? 76 सेंटीमीटर। यहाँ पे पीएटीएम लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है? तो मुझे ना एक्चुअल वैल्यू चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एसआई यूनिट में, कि कितना होता है एक्चुअली। ये तो हो गया, समझ में आ गया, 76 सेंटीमीटर होता है, 760 मिलीमीटर होता है, बट एक्चुअली कितना होता है? नाउ अंडरस्टैंड दैट मर्क्यूरी ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी देखा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है, ठीक है? अब इसको केजी पर मीटर क्यूब में करूंगा एसआई यूनिट में, तो इट विल लाइक 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है, ठीक है? अब सुनो, shall I say that एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो इस पूरे मास को बैलेंस कर रहा है। इसके नीचे जो फोर्स लग रहा है, that the force experienced by or the force exerted by this column, ये जो कॉलम नीचे फोर्स लगा रहा है, that is mass into gravity। मास into gravity इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। मुझे पता है प्रेशर की वजह से तो फोर्स लगता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, तो प्रेशर की वजह से तो फोर्स लगता है प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू मास इनटू जी ऑफ मर्क्यूरी। इतना सबको समझ में आया? इसमें कोई डाउट है क्या?
कि जो फोर्स एटमॉस्फेयर लगा रहा है मरकरी के ऊपर वो उसके mg के इक्वल होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है, नहीं है, सब समझ में आया इसमें, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दैट फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, तो P इनटू ATM, pressure, atmospheric pressure into area should be equal to mass into g. What is mass? Volume into density into g. वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ। बचपन से हम पढ़ के आए हैं कि वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ। लेंथ को मैं हाइट लिख दूं, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इज 76, तो A इंटू एच इंटू रो इंटू जी। एरिया से एरिया गया, मतलब जो प्रेशर है ना वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज जो पाई आर स्क्वायर वाला एरिया है ना वो आपस में कैंसिल हो रहा है। किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि क्या वो रेडियस पे डिपेंड करेगा, हाइट नहीं करेगा। हाइट विल नेवर डिपेंड ऑन रेडियस बिकॉज इट गेट कैंसिल। तो मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया, हाइट कितना है 76 सेंटीमीटर, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो 76 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मर्करी कॉलम का जो डेंसिटी होता है दैट इज 13.6 इंटू 10⁻3, जी होता है तुम्हारा 9.8। इन सबको जब मल्टीप्लाई किया ना, जब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया, राइट, so the answer which I got is 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको मैंने 101,325 पास्कल बोला। ये एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है। ये मुझे कैसे मिला? बिकॉज मर्करी ने बताया। 1 सेकंड, 13.6 into 10⁻3 के पर मीटर की डेंसिटी होती है। बात समझ में आई? ओ यस यस यस, ये जो मर्करी ना मर्क्यूरी की वजह से जब मैंने इसको HNO(G) में डाला ना, मर्क्यूरी के जो वैल्यूज थी, तो जो पूरा प्रेशर आया ना मेरे पास दैट इज 101,325 पास्कल। अच्छा, एक छोटी सी चीज पूछो। अच्छा, एक छोटी सी चीज पूछो, थोड़ी। एक मिनट, विजिबल नहीं है, किसका सिंबल विजिबल नहीं है? रुको रुको एक मिनट सर, आफ्टर 5, अच्छा 5 के बाद जो लिखा है ना दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, PA, ठीक है? अच्छा सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ी चीज होती है कि छोटी चीज होती है? इट्स अ वेरी बिग अमाउंट और बिग वैल्यू, और एक छोटी सी वैल्यू होती है। Small but as I would have been crushed by now. One student is saying that is a very big value. Our blood pressure is actually balancing that atmospheric pressure, otherwise would have been crushed nicely from everywhere. Now listen. This hand, right? Let's say this is the length. This hand I am considered as a rectangle. सुन लो, हाँ बहुत बड़ा वैल्यू होता है, सुन लो। ये हैंड ना मैं एक रेक्टेंगल की शेप में ले रहा हूँ, ठीक है? अज्यूम इट टू बी रेक्टेंगल, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दैट, सपोज करते हैं ये रेक्टेंगल का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, नहीं 6 बहुत कम हो गया, 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है? 15 सेंटीमीटर लेंथ है और लेट्स से 5 सेंटीमीटर विड्थ है। हाँ बाद में बात करते हैं। 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर विड्थ है, सपोज
तो अगर ये मेरा हैंड है, एक हाथ है जिसका जो रेक्टेंगल में एरिया है, अगर ये 15 सेंटीमीटर लेंथ है और 5 सेंटीमीटर विड्थ है, समझना है, 15 सेंटीमीटर लेंथ हो गया मतलब 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और 5 सेंटीमीटर का जो विड्थ हो गया दैट इज 5 इंटू 10⁻2 मीटर। ना ना ना, बात की बात है, सुनो ना, सुन तो लो। इस पे कितना प्रेशर लग रहा है? PATM। इस हाथ पे कितना प्रेशर लग रहा है? PATM। एग्री? अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है दैट इज 101,325 पास्कल। ठीक है, तो ना मैं देख लेता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा है। मैं ये देख लेता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रहा है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन से। मान है, ठीक है, सुनना, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। एग्री? तो जो फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है ना दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर कितना है 101,325, तो 101,325 एंड एरिया कितना है 75 इंटू 15 into 5 is 75 into 10⁻⁴ meter cube, meter square. Now understand, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ना 101,325 को 100,000 इतना लिख सकता हूँ, 1,325 को 000 करके अप्रोक्सीमेट, है ना, for simplifying, making my calculation simple, 75 into 10⁻⁴, इससे ये गया तो आया 750 न्यूटन। कितना आया? I got 750 न्यूटन। हाँ, 750 न्यूटन। ओके, अगर मेरे पास 750 न्यूटन आया, 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, getting disturbances, हाँ बेटा, switch off your video better. Sir, extra book should be referred. I'll tell you later on. सर अगर बॉटल 76 सेंटीमीटर से छोटी होती तो मत, बॉटल नहीं है वो यूट्यूब है, और वो ट्यूब बड़ी रखेंगे छोटी नहीं रखेंगे, वो अटक जाएगा ऊपर तक। सुनो, कैलकुलेशन आएगा नहीं, बैक प्रेशर आएगा। सुनो, 750 न्यूटन पता है क्या? अगर मेरे हाथ पे 1 किलो रखा हो, कितना 1 kg, तो आई हैव केप्ट 1 kg ऑन माय हैंड, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगता है? अभी भी आ रही डिस्टर्बेंसेस? ओके, मैं कह रहा हूं कि अगर 1 किलो है, 1 किलो नीचे फोर्स कितना लगाएगा? mg, जी को 10 ले लो 9.8 की जगह, तो 10 न्यूटन 1 किलो लगाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10, राइट? तो 1 kg mg जो लगाएगा वो 10 न्यूटन लगाएगा। मेरे हाथ में कितना न्यूटन लग रहा है? 750। 1 किलो 10 न्यूटन लगाता है, तो 750 न्यूटन कितने किलो लगाएंगे? मतलब मेरे इस हाथ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने 75 किलो रखा हुआ है, 75 kg. This is an atmospheric pressure actually I put 75 kgs on my hand. हाँ, no 75 बेटा. Getting it?
So 750 Newton means 75 kg. So one hand 75 kgs, 150 kgs. See, I'm lifting 150 kgs up. This is because of atmosphere. It's not so small. Sir, लेकिन हाँ सर वो लेकिन एक मिनट So you are writing this, sir. लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है अनलाइक 1 kg वेट, बट जितना आपके हाथ पे फ्रंट पे लग रहा है उतना ही पीछे लग रहा है. ओके अच्छा सुनो, मतलब सुनो एक बच्चे ने पूछा सर सर जितना 75 किलो ऊपर लग रहा है उतना ही 75 किलो नीचे लग रहा है. सुनो तो कह रहा है उतना ही 75 किलो नीचे लग रहा है, तो सब बैलेंस हो जाएगा सर, आपको कुछ नहीं होने वाला. एक बात बताओ, तुम यहाँ खड़े हो, इधर इधर मैं तुमको यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों साइड से क्रश कर रहा हूँ, राइट. मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो बैलेंस ही है ना, मतलब तुमको तो कुछ नहीं होना चाहिए. पापड़ बन जाओगे, पापड़, पता है. चलो, we'll move ahead to cathode rays in above pressure. Sir, but how can only gas molecule motion? That's what the main point is. We consider that gas is nothing, but actually speaking, is gas phenomena, that's pressure, is actually creating a hell lot of difference over us. Is thank God we have internal pressure of 1 atm. Otherwise सारे पापड़ बन चुके होते हैं. Because अंदर का जो body pressure है ना, because of blood flow, that is 1 atm. जब तुम ऊपर जाते हो ना पहाड़ों पे, तो अंदर का तो 1 atm रहता है, बाहर का कम हो जाता है, तभी तो वो नाक पे से ब्लीडिंग निकलता है, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर का प्रेशर. Getting a point? So these all things happen that way. तो हमारा जो internal body pressure है ना, it is balancing this atmospheric pressure. But now we start cathode ray, right? Exactly. अगर तुम नीचे जाओगे, डीप सी में जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर वाटर बढ़ रहा है ना, तो वाटर का कोलिशन भी होगा. अब वाटर का कोलिशन भी हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ वाटर, तो प्रेशर बढ़ता है नीचे जाने पे. ठीक है, चलो. I guess pressure funda is clear. You come to know that why there exists so much amount of pressure and which all factors are there and how to calculate the atmospheric pressure. So by this pressure thing, we came to know multiple things here, right? I will move ahead. Apart from that, cathode ray is like very peace. Okay. Cathode ray. Again, we haven't done it. We just discussed a lot of doubts and a lot of things.
regarding that particular phenomena, and now we started particular process. Listen. Vacuum nearly 10 minus 2 to 10 minus 4 millimeter of mercury. Under we applied a lining of zinc sulfide. Now the potential applied is 10,000 to 5,000 potential. One second. देखो यार, अभी बहुत सारा थ्योरी कहता है जे थॉमसन अंकल ने किया. एक बच्चा पूछ रहा है किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन. जूलियस प्लकर एंड जे थॉमसन, राइट? Both are fine with it. Initially, Julius Plucker did it, but J.J. Thomson did it simultaneously in other places, right? So credit goes to both of them simultaneously. Getting it? So some people, some literature write it as Julius Plucker, some write it as J.J. Thomson. Getting a point? And you will have to follow your textbook, that is CBSE. Because CBSE will decide your marks and everything, right? Now listen, everyone. Sun lo. Yeah. सर इतना हाई वोल्टेज रेट कैसे किया? अरे मैं इतना टेंशन वोल्टेज के ऊपर नहीं ले रहा हूँ फिलहाल. तो पता है टेंशन क्या ले रहा हूँ? No, whole. But a line, slightly lining, not the whole surface. समझने के लिए ले लो, ठीक है? मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना, वही है कि घर पे जो तुम्हारा वोल्टेज आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो किस पोटेंशियल पे आती है? हाँ, एसी तो आती है. पोटेंशियल कितना है? 220 से 240, 220 वोल्ट्स टू 240 वोल्ट्स, राइट? हाँ, करेक्ट. कभी गलती से एक्सपीरियंस किया है क्या वो झटका कैसा लगता है? कभी गलती से एक्सपीरियंस हुआ हो तो? कुछ को हुआ है ना? हाँ, नॉट एवरीवन ऑब्वियसली. पता है आत्मा कांप जाती है अंदर से ना. जो फीलिंग होती है ना उस इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत डेंजरस होती है. थोड़े टाइम के लाइक 1 or 2 सेकेंड ऐसा लगता है ये क्या हो गया, इतना खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है 240 वोल्ट 220 वोल्ट पे. एंड यू नो व्हाट, इस भाई साहब ने ना 5,000 से 10,000 तक वोल्टेज रखा है. अगर गलती से छू लिया ना इसको किसी ने भी, तो उसका वहीं पे तंदूरी चिकन बन जाना. इतना हाई होता है. गेटिंग इट? अब सीन क्या है? नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, राइट? So this is negatively charged potential and this is like positively charged. सुनना ध्यान से, ये जो नेगेटिव चार्ज रॉड है ना, राइट, इट इज कैथोड. तो I have large amount of negative charge on this plate. ठीक है, हमें पता है, पहले पता नहीं था, अब तो पता ही है कि बोर अंकल बोल के गए हैं कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं. यही बोला है ना? now, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लेता हूँ. हाइड्रोजन, राइट? अगर मैंने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बाहर जब एक ऑर्बिट ले लो तो एक इलेक्ट्रॉन होता है. चलो यहाँ पे ना हाइड्रोजन के बाद एक काम करते हैं, हीलियम ले लेते हैं.
हीलियम क्या होता है? हीलियम के न्यूक्लियस में उसका मास नंबर क्या होता है हीलियम का? कल ही किया था ना, ही। तो मास नंबर 4 था, एटॉमिक नंबर 2 था। तो मतलब 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 2 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। तो उसके आसपास जो शेल है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। समझना इस चीज को। जब ये नेगेटिव चार्ज प्लेट इस एटम के पास आई, तो इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया? ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को इसने रिपेल करना शुरू किया। हल्का सा पोटेंशियल हो तो हल्का रिपल्शन होगा। पोटेंशियल कितना? सुनना ध्यान से। पता है क्या? हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन की तरफ ध्यान से सुनो। अगर हाइड्रोजन एटम लिया ना, हाइड्रोजन छोटा एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ। सपोज मैंने एक -1 वोल्ट डाला, तो -1 वोल्ट क्या करेगा? इसको थोड़ा बहुत रिपेल करेगा। जैसे रिपेल करना शुरू किया ना, तो थोड़े टाइम के बाद ना तुमको ऐसा रहेगा कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहीं इधर आ गया। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में ना अट्रैक्शन होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है। तो मिनिमम ना, अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊं, ये इलेक्ट्रॉन 13.6 वोल्ट से ना अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से। अगर मैं और पोटेंशियल बढ़ाऊंगा ना, तो ये और रिपेल करेगा, और बढ़ाऊंगा तो और रिपेल करेगा, और बढ़ाऊंगा तो और रिपेल करेगा। जैसे ही ये 13.6 पोटेंशियल के इक्वल हो गया ना, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अगर -13.6 से और ज्यादा किया, तो समझना इस चीज को। हाँ, मैं इलेक्ट्रॉन, मैं व्हाइट बोर्ड पे चिपका हुआ हूँ, व्हाइट बोर्ड न्यूक्लियस। हाँ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनो तो, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। मेरी बात सुनो। मैं इलेक्ट्रॉन, मैं व्हाइट बोर्ड से चिपका हुआ हूँ। कितने एनर्जी से? लेट्स से मुझे ना 100 जूल्स चाहिए, तब मैं निकलूंगा बाहर। तो सपोज एक बंदा आया यहाँ पे, उसने मुझे 10 जूल दिए, तो मैं क्या बाहर निकलूंगा? न्यूक्लियस मेरे को अट्रैक्ट करा 100 जूल, 10 जूल दिए, बाहर नहीं निकलूंगा। कोई दोबारा आया, कहता यार ले 20 जूल ले, तो 20 जूल दिए, तो क्या बाहर निकलूंगा? नहीं। उसने मुझे 50 जूल दिए, क्या बाहर निकलूंगा? नहीं नहीं। 90 दिए, 90, मिला कम आउट। और उसने मुझे चिपका रखा 100 से। आ रहा हूँ, सब पॉइंट पे आ रहा हूँ, रुको ना। कितना आया? 90। अब सपोज जैसे ही मुझे 100 दिया, तो क्या होगा? I was attracted with this white board. I got 100. I just come out. अब बोर्ड मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, I just come out. I'll be free. So I require 100 joules. You gave me 100 joules. I came out. I become free. That's it, over. अगर मैं चिपका हुआ था बोर्ड के साथ, राइट, तुमने मुझे I'll tell you everything. Just give me some time. Just listen to it. You have given me 200 joules. कितना दिया तुमने मुझे? 200. Getting it? जब तुमने मुझे 200 joules दिया, मुझे कितना चाहिए था निकलने के लिए? 100. You have given me 200. जब तुमने 200 दिया, तो उस 200 में से ना 100 जूल तो मुझे निकलने के लिए लगा बाहर, बाकी का 100 जूल मेरे पास ही है। इमेजिन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है,
इसको बाहर निकालने के लिए मुझे 100 जूल्स चाहिए, ठीक है। तो इसको बाहर निकालने के लिए कोई मुझे 100 जूल्स चाहिए, 100 जूल्स दिया, बाहर निकल गया, बस खत्म। अगर मैंने इसको 200 जूल्स दिया ना, तो 200 में से 100 जूल्स इसको निकले बाहर निकलने के लिए, 200 में से 100 जूल्स उसको बाहर निकलने के लिए लगे। बाकी जो 100 है ना एक्स्ट्रा, ये उसके पास अभी भी है, उसकी वजह से मूव करेगा। तो बी लाइक दिस, अगर ये ऐसे निकल रहा है ना, तो लाइक 100 जूल्स बाहर निकलने के लिए लगे और 100 जूल्स एक्स्ट्रा, the extra amount of 100 joules which it has, because of that it is moving, that energy is known as, the energy because of motion is known as, क्या कहते हैं इस एनर्जी को? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर निकलने के लिए 100 जूल्स चाहिए और तुमने 200 दिए उसको, राइट, तो जो एक्स्ट्रा 100 था वो कहाँ गया? उसकी किसने बढ़ाया? काइनेटिक एनर्जी। अब लोग बोल रहे हैं कि सर इतना क्यों दिया? देखो यार, मैंने बोला हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन 13.6 वोल्ट चाहिए, बट हीलियम के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, बाकी सारे एटम्स के अंदर प्रोटॉन बढ़ते रहेंगे। नोबल गैस के अंदर तो सिस्टम बहुत स्टेबल होता है, राइट। तो मतलब उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना तो मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैंने ना कोई भी गैस के लिए ना जितना भी एनर्जी चाहिए हो उससे ज्यादा ही दिया। तो मैंने 5000 से 10,000 पोटेंशियल डाल दिया। मैंने कहा भाई तुम निकलो। अच्छा, you tell me, someone is asking that, suppose sir, suppose this electron comes out. If this electron comes out, what will be left back? क्या बचेगा यहाँ पे? Proton. What charge proton has? Positive charge. What charge this rod has? Negative. What will happen? What will happen then? अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा? अट्रैक्शन कोलाइड करके डाई ऑफ हो जाएगा, मर जाएगा, चला जाएगा। So it'll just go and collide over there, is game over. Suppose it is accepting electron, become gas again, depend करता है। कैनल रेस तब बनेगा जब इसमें गैप्स हो, तब जाके यहाँ आएगा ना। अब गैप्स तो रखे नहीं है, तो जाएगा, टकराएगा, गया। बेटा मैंने वैक्यूम से सारा एयर नहीं निकाला है, कुछ रखा है, चेक करो। सारा निकाल लेता तो कोई एटम होता ही नहीं, और कोई एटम नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कहां से आते? हाँ, अब सुन लो। चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो, अगर नेगेटिव चार्ज रॉड है तो क्या बाहर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्या बाहर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्या बाहर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जितने भी एटम्स रहेंगे ना जो नेगेटिव चार्ज रॉड के पास, उन एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। लोगों को लगता है कि कैथोड में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उस गैस में से जो कैथोड रे के अंदर है और कैथोड ट्यूब के अंदर है। तो जो भी नेगेटिव चार्ज रॉड के पास है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। ऑब्वियसली इतना ज्यादा पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगी। अभी तो किया हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस नेगेटिव चार्ज एंड कीप्स ऑन मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, और ये पहुंचने में आपस में कोलाइड करेंगे तो हर जगह कोलाइड करेंगे। जैसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ कोलाइड करा, तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन गया, कोलाइड किया, यहाँ कोलाइड किया, कोलाइड कर करके यहाँ पहुंच रहा है, तो जिंक सल्फाइड ग्लो करेगी। So this is about the cathode ray. You understood what exactly, how exactly cathode ray is generated? more glow. बहुत ज्यादा ग्लो है, करेक्ट। सुनो, imagine,
अपन इलेक्ट्रॉन मतलब मैं इलेक्ट्रॉन, मैं निकला कैथोड रे से बाहर, ठीक है, मेरे आगे ना मैं भाग के आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे ना एक एटम और मैं इसके साथ कोलाइड करूंगा, मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं जब उसके साथ कोलाइड करूंगा ना उसके इलेक्ट्रॉन को भी नॉक ऑफ कर दूंगा, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, जब मैं एज एन इलेक्ट्रॉन किसी और एटम पे कोलाइड कर रहा हूँ, उस कोलिजन की वजह से दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो भी आयोनाइज हो रहा है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। हाँ बेटा आयोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आई गेस थोड़ा लैग हो गया वीडियो, ठीक है। एनीवेज आयोनाइजेशन, हाँ आ रहा हूँ रुको। ओके, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ, जस्ट बाहर आया हूँ, ठीक है, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं दूसरे एक और एटम है, एक और एटम है, मैं उस एटम के साथ कोलाइड कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है ना, जब मैं उसके साथ कोलाइड करूंगा ना उसके इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दूंगा। दैट इज दिस प्रोसेस जिसमें मैं दूसरे एटम के भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा हूँ, तो उसको आयनाइजेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर आते हैं ना और जिस भी एटम के साथ कोलाइड करते हैं उसको भी आयनाइज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं एज ए इलेक्ट्रॉन जैसे ही रॉड से बाहर आया, मेटल प्लेट से बाहर आया, ठीक है, तो अगर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब गैस पार्टिकल ज्यादा है। खुद तुम सोचो ना, अगर मैं एज ए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा हूँ और मैं जैसे ही बाहर निकलू ना, यहाँ पे बहुत सारे एटम, बहुत सारे एटम, बिकॉज प्रेशर ज्यादा है। अगर बहुत सारे एटम्स हैं बिकॉज प्रेशर ज्यादा है, तो जैसे ही मैं बाहर निकला बहुत सारे एटम के साथ कोलाइड करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मेरी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मैं रुक जाऊंगा भाई, जैसे ही बाहर निकलूंगा इतना कोलिजन होएगा मैं रुक जाऊंगा। तभी हायर प्रेशर पे ना, तभी हायर प्रेशर पे ना कैथोड रेज ऑब्जर्व नहीं होती थी, इसलिए मेरे को प्रेशर लो करना पड़ा ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सके कैथोड से एनोड पर। बात समझ में आई? हाँ, अभी दूसरी चीज जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है कैथोड से, ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दैट, चाहे हीलियम लूं, चाहे हाइड्रोजन लूं, चाहे लिथियम लूं, चाहे बेरिलियम लूं, चाहे बोरॉन लूं, चाहे कार्बन लूं, कुछ भी लूं, निकलेगा इलेक्ट्रॉन बाहर। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सबके पास है, सब में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना बाहर, दे आर नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन, so cathode rays generated at cathode and move towards anode. Point number 1. Point number 2, cathode rays are negatively charged particles because अगर cathode rays ऐसे मूव करी और तुमने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया तो cathode rays ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, तो they are negatively charged. जब cathode rays मूव कर रही है ना तो between two successive collisions, जब तक वो कोलाइड नहीं कर रही है, it moves in a straight line. तो जो collisions के बीच में ना, it is always moves in a straight line like this. So any radiation which moves in a straight line, right, it cast shadow, वो shadow बनाती है, तो कैथोड रेज डज कास्ट शैडो। अच्छा, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होगा ना, अगर कोई मास होगा, जब भी कोई हल्की चीज यहाँ पे रखूंगा तो मास होगा, तो उसके साथ कोलाइड करेगा तो उसको थोड़ा बहुत मोमेंटम तो देगा ही ना। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है जब उसके साथ कोलाइड करेगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करें तो ये आगे आएगा, और कोलाइड करेंगे तो और आगे आएगा, और कोलाइड करेंगे तो और आगे आएगा। तो मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब जिनके पास मास है और बहुत सारा मास अगर कोलाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो मोमेंटम देगा ना। इस प्रॉपर्टी को ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इसलिए ना, अगर मैंने यहाँ पे एक पैडल रख दिया,
पैडल रख दिया ना, तो लाइट एल्यूमिनियम का पैडल रख दिया, और अगर एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है तो कोलाइड करने का पैडल मूव करता है, so it has a movement over there. So these are the properties of cathode rays. ठीक है, तो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही होते हैं. जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, आयनाइजेशन थोड़ा बहुत हो सकता है. वो ये पूछ रहा है कि आयनाइजेशन नहीं होगा क्या कैथोड रेज जब एल्यूमिनियम पे कोलाइड करेगी? थोड़ा बहुत हो सकता है, किसने मना किया नहीं हो सकता. But anyways, that is not a point of concern. The concern is it does have mechanical properties. ठीक है, चाहे मैं हीलियम लूं, चाहे हाइड्रोजन लूं, चाहे लिथियम लूं, निकल इलेक्ट्रॉन ही रहा है. तो जो बीटा रेज होती है ना, कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बीटा रेज बोलते हैं. तो तीनों चीजें सेम है. जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उनका चार्ज एंड मास फिक्स रहेगा. तो जो E/M रेशियो है ना बीटा पार्टिकल्स की, ठीक है, कैथोड रेज की, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है. चाहे हीलियम लो, इलेक्ट्रॉन आता है, हाइड्रोजन लो, इलेक्ट्रॉन आएगा, लिथियम लो, इलेक्ट्रॉन आएगा. तो E/M रेशियो फिक्स रहेगी. सो ये पोस्टुलेट्स हैं कैथोड रेज के, जो एज अ स्टूडेंट तुमने पहले भी पढ़ रखे हैं, है ना? अरे है ना? हाँ सर. तो Yes, sir. आज तुम वो जो बुक तुमको मिली है उसमें कैथोड रेज पढ़ना, ठीक है. I'll send some homework to you regarding the things which we have done today, ठीक है. Just try to finish cathode rays properly. I know what we have done today is like understanding of the whole setup, कि why it is observed like that, कि वो ऐसा क्यों होता है, राइट? तो आई गेस किसी को कोई भी डाउट आज के सेशन में? No, sir. नहीं? No, sir. No sir. No, sir. God bless you. Hope you understood each and everything today, right? Yes, sir. Sir, I have a doubt in calculating electron, proton and neutron. ये मेरे को कॉल करना. आयनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो उसको आयोनाइज कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन. तो अगर मैं एक बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हूँ और मैं जाके कोलाइड कर रहा हूँ किसी भी एटम. हाँ बेटा, किया. चलो, आई डू वन थिंग. तुम मुझसे डाउट पूछना. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक यू विल टीच फॉर नेक्स्ट लेक्चर? कैथोड, एनोड. Cathode rays, I'll just cover it fully. Anode rays, discovery of neutrons, and I'll go with J. Thomson. J. Thomson plum pudding model. सर, विनेगर का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सुनो यार, विनेगर सुन लो. विनेगर क्या था? CH3COOH, ये विनेगर का फॉर्मूला है. एसिडिक एसिड. इसको तुम C2O2H2O2H4 लिख सकते हो ना. 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन. तो जो कैलकुलेशन करना है इस पे कर, यू विल गेट द आंसर. अलग अलग लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. अगर प्रोटॉन कैलकुलेट करना है तो कार्बन में 6 होते हैं इंटू 2, ऑक्सीजन में 8 होते हैं इंटू 2, हाइड्रोजन में 1 होता है इंटू 4, दैट इज प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे बिकॉज न्यूट्रल है. और न्यूट्रॉन के केस के अंदर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन लो, तो 2 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 2, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. तो अलग अलग लिखूं साथ में लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता. तो आई गेस यू अंडरस्टूड, राइट? बच्चे, चलो बाय अदिति, बाय मयंक. या Bye, sir. बाय टेक केयर. Bye, sir. also there. Bye sir. Bye, sir. हाँ बेटा, you are also there. बाय. चलो बाय.
Yeah, take care.